सबसे पहले जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो जो राहुल गांधी पे होने जा रहा है। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। और आरंभ करते हैं वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Good evening, Navika. Look, it's been 25 minutes and I've been listening to this wonderful debate. But पहले तो मैं ये कहूँगा कि सैम पेट्रोडा जी राहुल गांधी एडवाइजर और 15 साल से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो तो गनीमत है। आशुतोष होते हैं एडवाइजर तो 50 साल से नहीं बनते। क्या कह रहे हैं ये? Look, but by the way, I do agree with Sam Petroda. Rahul Gandhi is not Pappu. He is प्योर एंड परफेक्ट, पर्टिकुलरली यूनिक। अब इसका एक्रोनिम आप बनाना चाहे तो मेरी गलती नहीं है। लुक, राहुल गांधी टॉक्स अबाउट द रीजन ही इज ब्रांडिशिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही सेज द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेड अंडर मोदी। बार बार जाके बोल रहे हैं। नाविका, व्हेन डज कॉन्स्टिट्यूशन डाई? Constitution dies when a citizen's freedom of speech and expression is brutally curtailed and stomped upon. And that is what Jawaharlal Nehru did through his first amendment to our constitution, following which under him dozens of books and films were banned, historians and editors were jailed. When does constitution die? When the president and the judiciary is forced to curtail the fundamental rights of the citizen. And that is what Indira Gandhi did through the emergency, following which tens of thousands of Indians were jailed and killed and sterilized and constitution's body and soul and preamble altered with gay abandon. When does constitution die? When a Supreme Court's considered verdict is overturned with impunity, when the citizen's right to privacy is snatched away. And that is what Rajiv Gandhi did through the Postal Act and through overturning the Shah Bano judgment, ushering in an era of blatant appeasement. When does constitution die, Navika? When tens of thousands of activists are arrested and charged with sedition and called anti-national. When the election commission is severely compromised, which is what Sonia Gandhi did. When under her proxy rule, 8,000 activists were charged with sedition in a single day. When Naveen Chawla, despite the Shah commission charging him with committing atrocities during the emergency and deeming him for unfit for office, was appointed as the chief election commissioner, ignoring the cries of CE that Chawla was spying for the Congress and passing on sensitive information to it. When does constitution die? When the FCRA Act is retrospectively amended, rendering the High Court conviction of political parties like the BJP and the Congress toothless, which is what happened under Rahul Gandhi. When the High Court conviction of the Congress and the BJP was rendered useless through a parliamentary amendment brought in by the BJP and supported by the Congress. Nehru, Indira, Rajiv, Sonia, Rahul. These are the famous five who have made sure our constitution is dead. On the other hand, how has Modi killed the constitution? Give me one example. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ये वीडियो में आनंद रंगनाथन सबसे पहले बात कर रहे हैं मिस्टर आशुतोष के, जो आशुतोष फॉर्मर जर्नलिस्ट, एक्स, खुद अभी फॉर्मर नहीं है, अभी अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड जर्नलिस्ट और फॉर्मर पॉलिटिशियन, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का दामन पकड़ के अपना जो जर्नलिस्टिक करियर है उसको अबैंडन किया था इन लोगों ने, इन मिस्टर आशुतोष ने। और इनका जो प्रेडिलेक्शंस हैं वो तो सब लोगों को पता ही है कि ये बिल्कुल अल्ट्रा सेक्युलर, बिल्कुल लेफ्टिस्ट टाइप के बंदे हैं। और इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल यूजलेस पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई मायने ही नहीं रखता है। क्योंकि इनका जो एक यूट्यूब चैनल है सत्य हिंदी में तो ये ऐसे ही असत्य बोलते रहते हैं और बहुत बेबाकी से असत्य बोलते हैं और उस असत्य का विवरण बहुत अच्छी तरह करते हैं अपने चैनल में, हर रात को करते हैं। और इनके जो बायस्ड जर्नलिस्ट्स हैं जो पूरी तरह एक पार्टी के अगेंस्ट हैं और न्यूट्रलिटी के नाम का कोई चीज़ ही नहीं है इनके पास। इनको तो राहुल गांधी का पूरी तरह चाटुकारिता करना है और ये वही करते रहेंगे। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस का चाटुकारिता इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और आनंद रंगनाथन उसके ऊपर ही बात कर रहे थे कि वी शुडंट एक्सपेक्ट एनी न्यूट्रलिटी फ्रॉम दिस फेलो, इनसे कोई नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए न्यूट्रलिटी। और ये डिबेट हो रहा था मिस्टर राहुल गांधी का यूएस ट्रिप के ऊपर। राहुल गांधी यूएस में गए, उधर अभी आज वो मिले इल्हान ओमर से, द स्क्वाड की मेंबर, द यूएसए के
वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल लेफ्टिस्ट, और ये तो इस्लामिस्ट भी हैं और एंटी सेमेटिक भी हैं, बिल्कुल एंटी इसराइल है और एंटी इंडिया है। ये आज़ाद कश्मीर में जाके इंडिया के अगेंस्ट स्पीचेस दे बोल चुकी है ये इमरान खान के बगल में खड़े होके। और आज राहुल गांधी और इनके हैंडलर्स उनके साथ मिलके बात कर रहे हैं। हमको तो पहले से ही पता था कि ये बिल्कुल रेडिकल लेफ़्ट वाले लोग हैं, ये जो राहुल गांधी हैं खासकर, ये पूरी तरह। और इनकी जो सिस्टर है वो तो अपना इनका जो एंटी इज़राइल और प्रो हमास ट्वीट से ही पता चलता था कि वो कितना ज़्यादा एंटी इंडिया है, एंटी इंडिया का जो स्टैंड है उसके अगेंस्ट है, और इज़राइल जो इंडिया का एक पार्टनर है उसके अगेंस्ट भी है। और ये राहुल गांधी जी उधर जाके हमारे देवताओं के ऊपर विवरण करते हैं, उधर बोलते हैं कि ये सब बोलते हैं। और एक ऐसे कांग्रेस वुमेन जो इंडिया का जो राइट है ना ये कश्मीर के ऊपर, उसको रिपीटेड करती है, उसको बोलती है कि इंडिया का कोई नहीं है, पार्ट नहीं है, इट्स सेपरेट कंट्री और इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसे एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, उनके बगल में बैठ खड़े होकर ये बात करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे, पहले भी ये यूएस में जाके उनका जो डीप स्टेट है यूएसए का, उनके साथ तो इनका गांठ बांट पूरी तरह है, और उधर गांठ बांट से ये इधर गलत चीज़ें कर रही हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा हमारा जो इलेक्शन इंटरफेरेंस था, इनका पूरा इलेक्शन इंटरफेरेंस किया था इन लोगों ने हमारे इलेक्शन में, यूट्यूब के थ्रू, ट्विटर के थ्रू कर नहीं पाए क्योंकि उधर एलन मस्क था, एलन मस्क ने किया नहीं। वो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया स्टफ वो भी करता है, पर उसका अलग प्रेडिलेक्शंस है। पर इसका जो यूएसए का जो वो है, और राहुल गांधी का जो सोशल मीडिया का कंट्रोल हुआ था 2024 के इलेक्शन में, वो अनप्रेसिडेंटेड था। यूट्यूब को ऐसा कंट्रोल किया था कि जो भी एंटी राहुल गांधी का जो वीडियोस बना रहा था, उसका वीडियो में मोनेटाइजेशन लिमिटेड हो जाता था, उनको एड्स कम मिलते थे, उनका व्यूअरशिप बहुत शैडो बैन कर दिया था बेसिकली। और यही शैडो बैन के कारण बहुत सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था बीजेपी का वो आगे नहीं जा पाया, और बीजेपी की भी बहुत सारी गलतियाँ थी, उस गलतियों को एम्पलीफाई किया इन यूएस बेस्ड और यूएस के एलाइड सोशल मीडिया कंपनीज़। इंडिया ने जैसे चाइना में सोशल मीडिया कंपनीज़ खुद के बनाए उन लोगों ने फायरवॉल बना के, वैसे इंडिया में किया नहीं है, वो गलती किया था इंडिया ने। और उनका तो जो डीप स्टेट है उसने, आप लोगों को पता ही होगा क्या किया था उन लोगों ने यूक्रेन में, और भी बहुत सारे देशों में इनके डीप स्टेट क्या क्या करतूत करते रहते हैं। और एंड में आके इनको, हमारी देश के बगल में एक देश था जो स्टेबल था, जो डेमोक्रेटिक था, और जो एक अच्छा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में भी जा रहा था, और अच्छी प्राइम मिनिस्टर थे उधर के, उसको उखाड़ के फेंका उन लोगों ने अपना ये शेनानिगन्स के कारण, या अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स के कारण, कि ये जो इलेक्शन हो रहा है बांग्लादेश में, वो इलेक्शन अनफेयर इलेक्शन है, इट्स रॉन्ग। उधर के जो मिनिस्टर्स हैं, उधर के जो लोग हैं, उन लोगों को सैंक्शन भी किया इन अमेरिकन पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट ने। और इनका जो अल्ट्रा वोक लोग हैं वो उधर बैठ के इंडिया के अगेंस्ट बात करने के लिए एक बंदे को भी लगा दिया उधर, वो मिस्टर जो मोहम्मद जो भी है वो उधर के प्रेसिडेंट बने हैं अभी, वो तो पता ही सब लोगों को, वो तो उधर का पपेट है पूरी तरह। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो उनका जो डीप स्टेट है उसका पूरा पपेट है वो बंदा, और वो पपेटरी इधर बैठ के कर रहे हैं। इधर इनके जो एम्बेसडर हैं वो भी वोक एजेंडा चलाते हैं, और इंडियन एंटी इंडिया यूट्यूबर्स जो हैं उनके साथ बैठ के अपना सोशल मीडिया आउटरीचेस करते हैं। सब लोगों को पता है इनका जो प्रेडिलेक्शंस है वो क्या है, वो बिल्कुल एंटी इंडिया है। और एंटी इंडिया ऐसे है क्योंकि वो जो स्टेट है, जो एक एंटी चाइना स्टेट है, एक जो साउथ ईस्ट एशिया में आप बोल सकते हो, वो है इंडिया। सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो इंडिया है, और इंडिया के अगेंस्ट ही ये अपना ये अजीबोगरीब प्रोपागेंडा डालते रहते हैं, और उस प्रोपागेंडा को फॉरवर्ड करते हैं मिस्टर राहुल गांधी को एलाई करते हैं। यूएस की जो डीप स्टेट के मीडिया, जो बहुत पावरफुल मीडिया उधर का, वो मीडिया इंडिया के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, और उस मिस इन्फॉर्मेशन को राहुल गांधी तोड़ देते हैं। और ये होता है
उधर का डीप स्टेट के एसेट ही बन गए हैं राहुल गांधी। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये यूएस में जाके तो इन लोगों ने बहुत अच्छा गुल फरमाया है और उधर से आके इंडिया में क्या क्या करने की कोशिश करते हैं। और अभी विंटर सेशन आने वाला है, उसमें बीजेपी को और भी बहुत सारे काम करना चाहिए। तो फिर देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों। क्या होता है देखते हैं हम लोग।